Hello dear students, this is the second video of a chapter number 12, the planet Earth from the standard 6, subject SS and part geography. In this video, we learn about the universe. In the previous video, we learn about some hard words and new words that make us easier to understand our chapter. So in this video, we learn about introduction of our chapter and also about the universe. So let's start our chapter. Chapter 12, the planet Earth. That means in this video and chapter we learn about the planet Earth. Planet Earth is a part of our solar system. In our solar system, Sun is the center and all other 8 planets are revolve around the Sun. So one of them is our planet, planet Earth. Earth is a unique planet because Earth is the only planet where the life is possible. So by learning the Earth, we also learn about many things in chapter. So let's get the idea that what we learn in this chapter. बिग आइडिया कॉर्नर में आइए, आपको पता चलेगा कि what should we learn in this chapter. First है the universe, second है star and constellation, then solar system, sun and the planets. We get the little idea about the solar system, the earth, unique planet, the satellite and the moon, asteroid, meteoroids, meteors, meteorites and comets. We also get the idea about this. Then next topic is newsmaker. ये आपको जो साइड में दिया गया है. In this newsmaker, we get the idea about one astronomer and also the great mathematicians of Indian history. One of the great mathematicians of Indian history. First, talk about Aryabhat. Newsmaker. Aryabhat was the first prominent Indian astronomer. वो क्या थे? Astronomer. The astronomer, those are scientists who learn and study the space. He was also a mathematician, यानी वो एक mathematician भी थे, who is credited with the discovering the zero, यानी कि उन्होंने ज़ीरो की क्या की थी? खोज की थी, यानी पूरी दुनिया को ज़ीरो से इंट्रोड्यूस करवाने वाले इंसान जो थे वो इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे. His works including the आर्यभट्टीय, उन्होंने 3 बुक लिखी थी. वन ऑफ देम इज आर्यभट्टीय एंड आर्य सिद्धांता, यानी आर्य सिद्धांत. आर्यभट्टीय बुक में ही उन्होंने आर्य सिद्धांता या इसे सूर्य सिद्धांता भी कहते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ आर्यभट्टीय. सो लेट्स सी द पिक्चर ऑफ आर्यभट्टीय. दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्यभट्टीय बुक विच वाज रिटन बाय आर्यभट्ट. ये आपको पिक्चर में जो दिख रहे हैं वो आर्यन भट्ट है. यहाँ मोहन आपटे लिखा है, उन्होंने अनुवाद किया होगा. शब्दार्थ है महाकोश एंड स्पष्टीकरण. दिस इज द बुक ऑफ आर्यभट्टी. वी आर ऑल्सो टॉक अबाउट द आर्य सिद्धांता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सूर्य सिद्धांता, यानी सूर्य के उन्होंने सिद्धांत दिया था. ये सिद्धांत दिया था कि अर्थ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि सही नहीं था. पर पहली दृष्टि देने वाले कि अर्थ एक प्लैनेट है या फिर उसका रिवॉल्व है, ये आइडिया देने वाले जो थे वो आर्यभट्ट थे. He had अर्थ अ सेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स. एज इफ आई टोल्ड, ये उन्होंने ये बोला था कि अर्थ जो है वो सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स है. He believed that the planets move around the earth, और वो ये भी मानते थे कि सारे planets जो है वो अर्थ के आसपास मूव करते हैं. He was the first astronomer to give a scientific explanation of eclipse.
यानी वो पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने एक्लिप्स यानी ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स एंड मून एक्लिप्स, जिन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी एक्लिप्स के बारे में कि एक्लिप्स होते कैसे हैं. He described the eclipse were not caused by the Rahu and the Ketu, rather by the moon coming between the earth and the sun. यानी उन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था, क्या बताया था कि दैट एक्लिप वॉज नॉट कॉज्ड बाय राहु, यानी एक्लिप की होने की रियल वजह राहु या केतु नहीं है, बट द रीजन बिहाइंड द एक्लिप्स इज मून जो है कमिंग बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब एक्लिप्स होता है. India's first satellite was named after him. In previous video, we also discussed about the satellite. Satellites are those celestial objects who revolve around the planet. यानी सैटेलाइट वो है जो कोई भी प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं. वो दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. तो हमने जो मेन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में इंडिया ने भेजा था उसका नाम हमने आर्यभट्ट रखा था. Let's watch a little video related to the Aryabhat. I will show you the video, then we discussed about it also. प्राचीन भारत में अनेक महान वैज्ञानिक और चिंतक हुए जिन्होंने ज्ञान के नए सूत्रों की रचना की, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया. सन 476 ईस्वी में जन्मे ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है. इसी बात को उनके लगभग 1000 वर्ष के बाद निकोलस कोपरनिकस ने भी कहा था. आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को जीरो का तोहफा दिया जो आगे चलकर पूरी मैथमेटिक्स की बुनियाद बना. आर्यभट्ट भारत के पहले गणित और अंतरिक्ष खोज के विशेषज्ञ थे. आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले 10 डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव के बाद 10 संख्या की रचना की. आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई की खोज की. आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सटीक गणना करके बताया कि एक साल में कुल 365 दिन और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. उन्होंने ही सबसे पहले कैलेंडर का आविष्कार किया जो मौसम के आने जाने के हिसाब से बना था. आर्यभट्ट ने ही 9 ग्रहों की खोज की और साथ में उनकी ब्रह्मांड में स्थिति को भी बताया. उन्होंने ये भी बताया कि यह 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं. गुप्त काल के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे थे, देशगीतिका, आर्यभट्टीय तथा तंत्र. आर्यभट्ट का मानना था कि रचना महान होती है, रचनाकार नहीं. गणित के 5 नियम एक ही सूत्र में उपस्थित करने वाले आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्रीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है. उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने का वास्तविक कारण बताया. आर्यभट्ट को ये भी पता था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं है, बल्कि सूर्य की किरणें उसमें प्रतिबिंबित होती हैं. मात्र 23 वर्ष की आयु में ही आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जिससे प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया. उनके सम्मान में भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया. 16वीं शताब्दी के लगभग सभी स्कूलों में आर्यभट्ट के श्लोक पढ़ाए जाते थे. आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई की वैल्यू और साइन के बारे में बताया था. गणित के जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए उन्होंने इस समीकरण का आविष्कार किया जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ. एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया. भारत के पहले गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को सम्मान देते हुए 2012 को गणित वर्ष मनाया गया था. So by watching this video, we get the idea about what is the actually invention of the Aryabhat. In video, we discussed about discovery of a zero, discovery of a pi, discovery of Arya Siddhanta, Aryabhatiya. ये सारी जो आर्यभट्ट ने बुक्स की इन्वेंशन किया हमने उसके बारे में
पढ़ा. Also in this video we get the little idea about the आर्यभट्ट कि वो भारत के कितने महान एस्ट्रोनॉमर थे. Now we start at a glance. In this chapter we learn about universe, galaxies. What is the definition of universe? The whole space and the celestial bodies are from the universe. Galaxies, the millions of the stars and planets are combined create the galaxies. Other celestial bodies also. Also we get the little idea about the star, the burning body that contain the gases and produce an incredible amount of heat and light. यानी हम स्टार के बारे में, स्टार जो है वो बर्निंग बॉडी ऑफ द गैसेस यानी आग का जलता गोला है जो हीट और लाइट बहुत ही बड़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है. देन वी लर्न अबाउट द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो. यानी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो पहले बना था. तो हाउ इट फॉर्म्ड and whose are the member of the solar system, we learn about that also. Then we learn about the sun, 8 planet and other celestial body. So sun, first हम पढ़ने वाले हैं sun the center of our solar system. कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन. मीडियम साइज्ड स्टार यानी एज कंपेयर टू अदर स्टार हमारा सन जो है वो कैसा है? मीडियम साइज का स्टार है. देन वी लर्न अबाउट द 8 प्लैनेट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट, मीटियर्स, मीटरॉइड्स, मीटराइट्स, कॉमेट्स. Then in a planet we learn about the earth, blue planet. We learn the reason why the earth is called blue planet. Only planet where life exists यानी इकलौता planet जहाँ जीवन देखने को मिलता है. The moon is the earth only natural satellite यानी मून के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ का only natural satellite है. बाकी Saturn, Jupiter also have the another satellites, natural satellite. The largest number of satellites have Jupiter. The universe. Have you ever looked out into the vast space that surrounds you and wondered about the earth on which you live? यानी कभी आपने हमारे आसपास वास्ट स्पेस यानी बड़े आकाश को देखा है जो जिसने हमें घेरे हुए है? और कभी आपको ये आश्चर्य हुआ है कि हमारा अर्थ है वो किस तरह से पार्ट बना होगा इसका, या फिर अर्थ कैसे एग्जिस्ट करता है, या आकाश किस तरह से ऐसा दिखाई देता है, ये तारे क्या है? इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन आवर यूनिवर्स अबाउट द 15 बिलियन ईयर अगो. यानी ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि एग्जैक्टली हमारे यूनिवर्स के साथ 15 बिलियन ईयर्स पहले कैसे हुआ, क्या हुआ था. दैट मीन्स वी गेट द आंसर दैट द फॉर्मेशन ऑफ आवर यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, ये यूनिवर्स बना कैसे, हाउ इट फॉर्म्ड, वी लर्न अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. All the matters in a universe was constructed in one mass. यानी ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में हमें जो भी, पहले तो लेट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स. द होल स्पेस in which including the planet, celestial bodies, satellites, suns, galaxies are combined from the universe. यानी ये सारे यूनिवर्स के पार्ट है. तो पूरा यूनिवर्स जो है वो एक ही मास से बना था ऐसा मानना जाता है. दैट मीन्स कि गैलेक्सी का भी फॉर्मेशन वहीं से हुआ जहाँ से सैटेलाइट का हुआ, वहाँ से ही स्टार्स का हुआ, वैसे ही एक मास में से ही सबका फॉर्मेशन हुआ. दिस इज सुपर डेंस, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा डेंस, एक्सट्रीमली हॉट मास
eventually explode with a big bang. बिग बैंग जो है वो वर्ड याद रखना, बिकॉज वी डिस्कस्ड वन थियरी दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थियरी. तो क्या हुआ कि ये सुपर डेंस जो मास था और एक्सट्रीमली गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, वो एक्सप्लोड यानी फटा, और जब वो एक्सप्लोड हुआ उसे हम कहते हैं बिग बैंग. एंड द मैटर वॉज थ्रोन अराउंड इन ऑल डायरेक्शन. ऑब्वियस है, अगर कोई चीज़ फटेगी तो उसके सारे टुकड़े हो गए वो चारों दिशा में फैल जाएगी. वैसे ही बिग बैंग के साथ ये जो वन मास था उसका ब्लास्ट हुआ और उसके सारे टुकड़े जो है वो स्पेस में हर एक दिशा में फैल गए. The universe started to expand and get bigger, thus creating more space around the matter. यानी कि अब ये जो मैटर थ्रोन हुआ था सारी डायरेक्शन में, उसने क्या किया, यूनिवर्स को बनाना शुरू किया. स्टार्टेड एक्सपेंड, फिर वो मैटर जो है वो धीरे धीरे फैलने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा. एंड दिस क्रिएटिंग द मोर स्पेस अराउंड द मैटर, और उस मैटर के आसपास वो और आकाश बनाने लगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्स. की स्पेस कैसे बना, टाइम कैसे बना, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. दिस स्कैटरेटेड मैटर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज. स्कैटरेटेड मैटर्स यानी ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन की वजह से जो एक मास था वो चारों दिशा में फैल गया और फिर उसने यूनिवर्स को बनाना स्टार्ट किया, एक्सपेंड हुआ, धीरे धीरे वो अराउंड द स्पेस फैलने लगा. सो ये स्कैटरेटेड मैटर जो था, फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी, यानी उन्होंने गैलेक्सी को भी बनाया. अगेन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द गैलेक्सी. गैलेक्सी आर मेड अप ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, ऑल्सो द सन, like our sun and other stars with their planets. तो फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी हुआ, इसकी वजह से फिर स्टार्स बने और हेवनली बॉडीज. Before we discussed about Big Bang theory, let's watch the one animated video related to the Big Bang theory. What is the Big Bang Theory? Many of us wonder how everything, that is humans, trees, planets, stars, galaxies, and even space and time came into existence. How did our universe originate? Now, there are several theories, beliefs, and myths about the beginning of our universe. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory, which scientists use to describe the initial formation of our universe. It states that our universe began from a very hot and compressed point, which is also known as a singularity. Based on estimations, it is said that approximately 13.7 or 13.8 billion years ago, the singularity violently exploded. This explosion is called the Big Bang. Scientists claim that from this explosion or Big Bang, space, time, energy, matter, and then stars, galaxies, humans, etc. came into existence. Now, you must be wondering, what happened before the Big Bang at singularity? Said that at singularity, laws of By watching this animation, now you get the idea about the Big Bang theory. So what we see in this video, we learn in this video that कि मास का कोई एक पार्टिकल था जिसका क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, बिग बैंग. उस एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग. और ये मास जो है वो चारों दिशाओं में स्पेस में फैल गया और फिर जो है वो धीरे धीरे यूनिवर्स का फॉर्म करने लगा. यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने और अलग अलग सेलेस्टियल बॉडियाँ बनने लगी. और ये जो थियरी है यानी एक्सप्लोजन हुआ और इसकी वजह से ही हमारा अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स क्रिएट हुए, ऐसा मानने को आता है. दैट थियरी इज कॉल्ड द बिग बैंग थियरी. So let's discuss word to word. All of this has been explained by a widely accepted theory called the Big Bang theory. यानी कि ये जो हमने डिस्कस किया, बिग बैंग कैसे हुआ, एक पार्टिकल्स में से सारे
यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी सभी लोग इस थियरी को मानते हैं और इस थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी। द थियरी एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट लीड टू द बर्थ ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी ये थियरी कहती क्या है कि ये एक्सप्लेन करती है प्रोसेस किसकी, बर्थ ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म की जो प्रक्रिया है या फिर वो कैसे बना, वो थियरी एक्सप्लेन करती है। कौन सी थियरी? बिग बैंग थियरी। विद द बिग बैंग millions of galaxies each having a millions of stars were formed in the universe, यानी बिग बैंग यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज बने, फिर एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ द स्टार्स बने, वेर फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स, और इसी तरह से ये सब कुछ यूनिवर्स के अंदर फॉर्म यानी बनने लगा। वन सच ए गैलेक्सी टू विच आवर सन बिलोंग इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन विच गैलेक्सी आवर सन बिलोंग, या फिर आवर सन सिचुएटेड इन विच गैलेक्सी। सो आंसर विल बी अ मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सन सिचुएटेड है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। दिस स्पायरिकल शेप्ड गैलेक्सी इज ऑल्सो नॉन एज आकाश गंगा इन हिंदी, यानी मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा भी कहा जाता है। और इसका शेप कैसा है? स्पायरिकल शेप। ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मिल्की वे, तो आंसर इज अ स्पायरिकल। फिर व्हाट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी इन हिंदी, दैट इज आकाश गंगा। व्हाट इज़ द थियरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, the Big Bang theory. These questions can be asked. With this, we end our topic here. In the next video, we discussed about the stars, formation of the star, constellations, और थोड़ा बहुत सन के बारे में पढ़ेंगे।